This is Divyani. Welcome to the second part of chapter Business Environment. In this video, we are going to talk about two more topics of this chapter, that are dimensions of business environment and SWOT analysis. So, dimensions. There are two dimensions of business environment. First is micro, second is macro. Micro environment. Micro environment is also known as direct action environment or task environment. Direct action environment, why? Because it directly influences the working and performance of the business organization. अब इसके ये दो और नाम है, उन्हें याद करना क्यों ज़रूरी है, उन्हें रिमेंबर रखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ये हमारे इस पार्ट का एक और सेंटेंस बना देगा, हमें लेंथी करने में हेल्प करेगा, अपने आंसर को लेंथ देने में हेल्प करेगा. तो इसलिए डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट. So if we talk about its definition, micro environment includes those internal and external forces which directly influence the working and performance of an individual business organization. Okay, micro environment has also two parts, that is internal factors and external factors. Internal factors are all those factors that exist within the business firm and are controllable. कंट्रोलेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये बिज़नेस फर्म के अंदर होते हैं और एक ही बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं जिस बिज़नेस के अंदर होते हैं. तो वो बिज़नेस फर्म अपना ये चीज़ कंट्रोल कर सकती है, ये फैक्टर्स कंट्रोल कर सकती है. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो सारे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स और एजेंसीज़ जो बिज़नेस के डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में आती रहती हैं. ओके, तो दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स और एजेंसीज विथ विच एंड बिजनेस फर्म्स come into direct and frequent contact, and these individuals and groups are also known as stakeholders. What they are known as? Stakeholders. Why? Because they have a stake or financial interest in the working and performance of the business organization. तो अब इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ कॉरपोरेट कल्चर. व्हाट इज़ कॉरपोरेट कल्चर? Corporate culture refers to values, beliefs and attitudes of the founders and top level of management of a company. Okay, founders and top level of management, इन लोगों के values, beliefs और attitude भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को. क्या किस चीज़ों में इन्फ्लुएंस करते हैं? इन व्हाट कंपनी स्टैंड फॉर, हाउ इट डज थिंग्स एंड व्हाट इट कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट. ओके, सो द वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर्स and top level of management of a company exercise a strong influence on what company stand for, how does things and what it considers important. Okay, second, mission and objectives. What does mission refer to? Mission refers to purpose and intention. Mission refers to purpose and objective refers to result or destination. Mission guide business organizations priorities, strategies, development process, etc. Okay, priorities, strategies, development process, etc. Objectives guide business firms plans, policies, strategies, allocation of resources, etc. Okay, third, top management structure. Top management structure includes composition of board of directors, degree of professionalization of management and organization structure. आपके डायरेक्टर्स कैसे हैं, प्रोफेशनल्स आपके कैसे कितने प्रोफेशनल्स हैं मैनेज जो कर रहे हैं, मैनेजर्स कैसे हैं आपके,
और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ओके, सो फोर्थ इज पावर स्ट्रक्चर। द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने यहाँ पे BOD लिखा है पर आप एग्ज़ाम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखेंगे, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। सो द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव भी बहुत मैटर करता है एक बिजनेस के वर्किंग और परफॉर्मेंस में। एंड दिस वन इज़ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज किस चीज़ में हेल्प करती है? अगर कंपनी की इमेज अच्छी खासी है तो वो क्या क्या करती है, किस चीज़ों में हेल्प करती है? फाइनेंस रेज करने में हेल्प करती है, अच्छे डीलर्स और सप्लायर्स चूज़ करने में, न्यू प्रोडक्ट वो अर्ली लॉन्च कर सकते हैं और फॉरेन मार्केट्स में भी ईज़िली एंटर कर जाते हैं क्योंकि इनकी एक इमेज होती है मार्केट में। तो रेजिंग फाइनेंस, choosing dealers and suppliers, launching new products, entering foreign markets, etc. Human and other resources. Human, कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्सेज हो? ह्यूमन में हम अगर कंपनी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का कॉम्पिटेंस, उनकी मोरल और उनकी मोटिवेशन भी अफेक्ट करती है एक बिज़नेस फर्म के सक्सेस या ना सक्सेस होने में, उसकी वर्किंग और परफॉर्मेंस में। और अदर रिसोर्सेज में अगर आते हैं तो एक बिज़नेस फर्म की फिनेंशियल पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करता है, वो सारी भी मैटर करती हैं। अदर रिसोर्सेज, फिनेंशियल पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़। ओके, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में फर्स्ट जो आता है वो है हमारे कस्टमर्स। अब बिज़नेस क्यों एग्जिस्ट करता है? बिज़नेस एग्जिस्ट करता है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर वो लोग होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, वो होते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स ही हमें बताते हैं, जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी फर्म सक्सेसफुल होगी। तो बिज़नेस फर्म्स को सक्सेस दिलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करते हैं? कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो उनका प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनका प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करते हैं। जिनके लिए बिज़नेस फर्म प्रोडक्ट बनाता है वो कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉम्पिटिटर्स पे। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? जो एकदम सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? जो एक ही नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं पर प्रोडक्ट समवॉट डिफरेंट होता है। नीड एक ही सेटिस्फाई करते हैं पर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। कैसे? अगर हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो टीवी का अगर ब्रांड लें तो एक LG हो गया, ये सैमसंग हो गया, ओनिडा, वीडियोकॉन, ये सारे टीवीज़ के ब्रांड्स हैं। तो ये सारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं। अगर इनडायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो सिनेमा हाउस है और कैसीनो है, ये दोनों कॉम्पीट करते हैं। वाई? क्योंकि दोनों ही एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही एंटरटेनमेंट देते हैं, बट इनका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट वेज में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट कंपटीशन है। तो कॉम्पिटिटर्स कौन है? जो हमारी फर्म से कॉम्पीट करते हैं, या तो सेम प्रोडक्ट बेच के या तो थोड़ा सा चेंज प्रोडक्ट, बस जो सेटिस्फाई करे सेम वांट। ओके, अब थर्ड में आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? एक बिज़नेस फर्म होती है, या तो कहीं से ख़रीद के वही सेम प्रोडक्ट बेचती है दूसरे लोगों को, कंज्यूमर्स को, या तो फिर वो रॉ मटेरियल बाय करती है और फिर उसको प्रोडक्ट बना के, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बना के सेल करती है। तो सप्लायर्स भी हमारे बहुत मायने रखते हैं। हमारे सप्लायर्स कैसे हैं? एक सप्लायर में डिपेंड होना भी काफ़ी दिक्कत दे सकता है। तो हमारे
एक बिज़नेस फर्म के काफ़ी सारे सप्लायर्स भी होने चाहिए। अगर एक सप्लायर डिक्लाइन कर रहा है कभी प्रोडक्ट देने में, तो हमारे पास दूसरा सप्लायर होना चाहिए ताकि हम उससे रॉ मटेरियल ख़रीद लें। तो या तो हम सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं या तो फिर ऑलरेडी फिनिश्ड गुड ख़रीदते हैं जो हम सेल करते हैं। सप्लायर्स आ गया। अब मिडिल मैन कौन होते हैं? जो कंपनी के प्रमोशन में, सेलिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं। या तो वो कंपनी को प्रमोट करने के लिए होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए होते हैं, उसके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं। तो ये मिडिलमैन कौन होते हैं? मिडिलमैन हो गए होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एजेंट्स। अब एक हो गया मैन्युफैक्चर, जो सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। एक हो गया कंज्यूमर, जो अल्टीमेट कंजप्शन करता है। अब इन दोनों के बीच में जो लोग आते हैं, मैन्युफैक्चर कभी कभी सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो प्रोडक्ट को रेडी करने में ही उनका टाइम लगता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट को रेडी करती हैं, बाकी सेलिंग मार्केटिंग उसकी कुछ और लोग करते हैं। तो इसके बाद जो लोग आते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, जो मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करते हैं, वो मिडिलमैन होते हैं। इनको और क्या कहते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और मिडिलमैन। ओके। और होते हैं फिनेंशियल्स। अब एक कंपनी को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा अकेले तो नहीं आ सकता क्योंकि एक कंपनी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो हम कहाँ से रेज़ करते हैं? शेयर होल्डर्स से, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से और डिबेंचर होल्डर से, और भी काफ़ी हैं, जैसे बैंक्स भी होते हैं। तो ये सब भी हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग परफॉर्मेंस में काफ़ी मैटर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स कैसे हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हमारे ऊपर क्या चार्ज ले रहा है, एसेट्स में क्या क्या चार्ज कर रहा है, सिक्योरिटीज़, और डिबेंचर होल्डर्स कितना इनका इंटरेस्ट का रेट है, ये सब मैटर करता है। ओके। अब पब्लिक्स में आते हैं वो ग्रुप्स जिनका हमारे कंपनी में इंटरेस्ट है, एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, जो कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मीडिया ग्रुप, मीडिया अफेक्ट करता है। अगर हमारी कंपनी में कुछ भी, या तो हमारी कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रही है या फिर कुछ यूनिंग की तरफ जा रही है, कुछ मिलावट कर रही है, तो मीडिया कभी कभी बीच में आती है। तो मीडिया भी अफेक्ट करती है, NGOs भी अफेक्ट करते हैं और लोकल कम्युनिटी भी अफेक्ट करती है। यहाँ से हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट ख़त्म हो गया पब्लिक्स तक। अब हम आएंगे मैक्रो एनवायरनमेंट की तरफ। Macro environment is also known as indirect action environment. Indirect action environment, why? Because it indirectly influences the working and performance of a business organization. So macro environment is also known as indirect action environment. Macro environment includes those general factors. General in the sense कि वो बहुत सारी फर्म्स को अफेक्ट करते हैं, एक फर्म के लिए नहीं होते, इसलिए जनरल होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दीज फैक्टर्स आर लेस कंट्रोलेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत सारी फर्म्स को अफेक्ट करते हैं. अब बहुत सारी फर्म्स को अगर ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल फर्म कैसे इसे कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती, इसलिए ये लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड इज
social environment, third is technological environment, fourth is political environment, and fifth is legal environment. Now, what is economic environment? Economic environment comprises of all the factors and forces related to means of production and distribution of wealth, means of production and distribution of wealth, economic conditions, etc., which indirectly influence the profits and productivity of an business organization. अब ये प्रॉफिट्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं. इनडायरेक्टली क्यों? मतलब डायरेक्टली कौन कौन से इन्फ्लुएंस करती हैं? डायरेक्टली तो प्रोडक्ट्स हो गए और कंज्यूमर्स हो गए, और भी काफ़ी कुछ जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, पर ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस रिलेटेड टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा. अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ये कंपोनेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं. तो कंपोनेंट्स, अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स हम 3 to 4 कंपोनेंट्स अगर हम लर्न कर लेते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होते हैं. तो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सेकेंड इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड इज़ इकोनॉमिक इंडिसेस, एंड फोर्थ कैपिटल मार्केट. ओके, ये हम कैसे लर्न करेंगे? इकोनॉमिक वर्ड आगे इनके सब के जुड़ा हुआ है एक्सेप्टिंग कैपिटल मार्केट. इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिसेस एंड देन कैपिटल मार्केट. और भी हैं जैसे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट कंडीशंस. पर अगर हमें 4 लर्न करना है तो हम ये कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट कंडीशंस भी कर सकते हैं. सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस within which business firms operate. Social and cultural forces within which business environment operates. सोशल एनवायरनमेंट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स. डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या है? इनके अंदर क्या आता है? साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. इसके भी हम कुछ कंपोनेंट याद कर लेते हैं, 3 से 4. ये डेमोग्राफिक फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, जिसके अंडर हम कह रहे हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, मेल फीमेल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एज कॉम्पोजिशन. सेकेंड इससे ही रिलेटेड, इसके वर्ड से रिलेटेड, सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारे वर्ड्स. एटीट्यूड्स, सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, सोशल कल्चर, लाइफस्टाइल्स एक्सेट्रा. अब इसी का एक और वर्ड जो कि थर्ड कंपोनेंट बनेगा हमारा, विच इज सोशल कंसर्न्स. सोशल concerns regarding what? Regarding population, corruption, status of women and minorities. Okay, regarding pollution, corruption and status of women and minorities. इसके बाद फोर्थ हम लेते हैं, तो फोर्थ बर्थ एंड डेथ रेट. ये सोशली रिलेटेड है, बर्थ एंड डेथ सोशल है, इसलिए बर्थ एंड डेथ रेट, एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, ये सारे पॉइंट भी सोशल के अंडर आ जाएंगे. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनीशन अगर हम देखें तो क्या होगी? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? साइंस से. तो स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स. स्टेटस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स सच एज rate of technological change,
institutional arrangements for the development and application of new technology, institutions के कैसे arrangement है न्यू टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने में और उसका अडॉप्ट करने में, उसके डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हैं और इक्विपमेंट कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी देखी जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट refers to state of science and technology in the country and related aspects such as rate of technological change, institutional arrangements for the development and application of new technology, manufacture process and equipment etc. इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र्स कैसे हो रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, कितने ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। थर्ड इज़ R&D फैसिलिटीज़, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। ओके, 3 ये हो गए कंपोनेंट। फोर्थ एनवायरमेंट और फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट इज़ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स पब्लिक से रिलेटेड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। पब्लिक अफेयर्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो बिजनेस में आता है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला, इसके वर्ड से ही रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम, कैसा सिस्टम है हमारी कंट्री में, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री में। सेकेंड इज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रेफर्स टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, कैसे रिलेशंस हैं सेंटर्स में और स्टेट्स में, कैसे रिलेशंस हैं उसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सिस्टम, सेकेंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज प्रोसेसेस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस। प्रोसेसेस रेफर्स टू पार्टी सिस्टम कैसे हैं, इलेक्शन कैसा हो रहा है, उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये सारे प्रोसेसेस। फर्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस। और भी बात करें तो फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, इसका भी एक ये भी कंपोनेंट है। फोर्थ कंपोनेंट इज़ फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। फिफ्थ इज़ पॉलिटिकल है, मतलब कि कंट्रीज़ का रिलेशन भी देखा जाएगा, इसलिए रिलेशन ऑफ कंट्री विथ अदर कंट्रीज़, ये भी एक इसका कंपोनेंट है। एंड फिफ्थ इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, लीगल वर्ड से ही पता चल रहा है कि लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रीज विच एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ विच बिजनेस हैज़ टू फंक्शन। लीगल एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस फर्म को अफेक्ट करती हैं, वो सारी लॉज एंड रेगुलेशंस। अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम लें तो वो हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज़। लॉज एंड रेगुलेशंस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताते हैं, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। सेकेंड, लॉज कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। थर्ड इज लॉज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, लॉज होते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग। फोर्थ इज़ लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। फिफ्थ हो सकता है लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। सिक्स्थ इज स्टैट्यूटरी वार्निंग टू बी प्रिटेंड इसेंशियली ऑन लेबल्स, कुछ प्रोडक्ट्स के लेबल में स्टैट्यूटरी वार्निंग इसेंशियली प्रिंटेड होनी चाहिए। ऐसे कौन से हैं, टोबैको जैसे ले लो, उसके पीछे स्टैट्यूटरी वार्निंग दी ही रहती है कि दिस इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, यहाँ से मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा फिनिश होता है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट,
stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunities, and T stand for threat. It can also be modified into TOES. T threat, O opportunities, W weakness, S is strength. अब स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है जो एनवायरनमेंट में नहीं, कंपनी के अंदर होती है, उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी विच इट कैन यूज़, जो ये यूज़ कर सकती है स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन करने में ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. ओके, strength is inherent capability of a company which it can use to gain strategic advantage over its competitors. ये बिजनेस फर्म के अंदर होती है, बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं, बिजनेस फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है. वीकनेस क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन और कॉन्स्ट्रेंट ऑफ अ कंपनी, जो उसके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट करती हैं, जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं. कभी कभी ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं, उस कंपनी को एक डिसएडवांटेज देते हैं, हार्म करते हैं. इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं कंपनी की. अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में होती हैं. अगर बाहर में कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको हम अर्ली ग्रैब करके अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ अ फेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इनेबल्स इट टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एंड फेस इट्स कॉम्पिटिटर्स. थ्रेट क्या है? थ्रेट भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है. वो क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन. अपॉर्चुनिटीज़ का जस्ट अपोजिट. फेवरेबल कंडीशंस अपॉर्चुनिटीज़ है और अनफेवरेबल कंडीशन थ्रेट है. थ्रेट इज़ एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज अ डैमेज और रिस्क टू अ बिजनेस पोजीशन. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. अब यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. Here we completed part 2 of chapter Business Environment, which means that we have completed the complete chapter Business Environment. Thank you for watching. Please like, subscribe and share my channel. Go ISC with Divya.